Hello student, today I am going to solve some question based on ASM, algorithmic state machine. So first question is draw the ASM chart for a signal generator which generates one waveform out of four shown in figure depending on the combination of two control input x1 and x2. So in question, this is the clock for x1 x2 0 0. This is the waveform for x1 x2 0 1. This is the waveform for x1 x2 1 0. This is the waveform for x1 x2 1 1. This is the waveform. So according to question, signal generator which generates one waveform out of four shown in figure. So suppose this is time period t1, this is time period t2, this is time period t3, and this is time period t4. So in time period t1, consider this is the state q1. In time period t2, consider this is the state q2. In time period t3, consider the state q3, and in time period t4, consider the state q4. Now how ASM chart will be drawn. So for ASM chart, consider time period t1. So in time period t1, uh, state is q1. So state is q1. So now signal generator can generate any one, और यहाँ जो waveform है all waveform are high. तो इसका जो ASM chart बनेगा, so first of all you have to consider a state box. So this is the state box, and in state q1, suppose for state q1 binary representation is 0 0. So for q1, what is the output? Output is 1, because signal generator can generate any waveform and all waveform are high. So here output is high and there is no need of decision box. यहाँ कोई भी decision box की ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं जब स्टेट q2 है. जब स्टेट q2 है तो यहाँ जो वेव फॉर्म है फॉर 1 1 के लिए यहाँ लो है, फिर 1 0 के लिए हाई है, 0 1 के लिए भी हाई है, 0 0 के लिए भी हाई है. तो यहाँ डिसीजन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब स्टेट q2 है, इसका सपोज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू 0 1 है, तो क्या होगा? देयर इज ए स्टेट बॉक्स एंड आफ्टर दैट डिसीजन बॉक्स विल बी रिक्वायर्ड. और डिसीजन बॉक्स से क्या चेक होगा कि x1 x2 अगर 1 है, x1 x2 अगर 1 है, अगर x1 x2 1 है तो क्या है? इसका आउटपुट 0 है. और अगर x1 x2 अदर देन 1 1 है तो क्या है? आउटपुट इसका हाई है. तो जब x1 x2 1 है, yes, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 0, दैट विल कम इन कंडीशनल बॉक्स. और जब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1, अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा? जो आउटपुट दैट इज 1, वो कंडीशनल बॉक्स में आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so this is for first clock, this is for second clock, and now next is this is for third clock. So third clock में क्या होगा? फिर जब Q3 स्टेट है तो यहाँ जो आउटपुट है x1 x2 1 1 के लिए हाई है, x1 x2 1 0 के लिए क्या है? लो है, x1 x2 0 1 के लिए हाई है, और x1 x2 0 0 के लिए क्या है? लो है. तो फिर यहाँ डिसीजन बॉक्स की ज़रूरत होगी. तो क्या होगा डिसीजन बॉक्स? आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि जब अगर हम x2 कंसीडर करें तो जब x2 1 है, तो क्या है? यहाँ भी हाई है, और जब x2 1 है यहाँ भी हाई है. रिमेनिंग केस के लिए क्या है? लो है. तो इसका जो डिसीजन बॉक्स होगा, इसके डिसीजन बॉक्स में जब प्रेजेंट स्टेट q3 है और इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 1 0. अब डिसीजन बॉक्स से हम क्या चेक करेंगे कि x2 का वैल्यू क्या है? जब x2 का वैल्यू 1 होगा, जब x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
जब x2 का वैल्यू, एक केस ये हो गया जब x2 का वैल्यू 1 है, और एक केस ये हो गया जब x2 का वैल्यू 1 है, तब क्या क्या है, यहाँ यहाँ आउटपुट हाई है और यहाँ भी आउटपुट हाई है। तो जब x2 का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब x2 का वैल्यू 0 था तब क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर फॉर फोर्थ क्लॉक में अगेन, now for fourth clock again consider this is the Q4 state. so in Q4 state क्या है, x1 x2 10 के लिए भी लो है, x1 x2 10 के लिए लो है, 11 के लिए लो है, 01 के लिए भी लो है और 00 के लिए भी लो है। तो क्या यहाँ डिसीजन बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर इज नो, यहाँ डिसीजन बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, हियर here you will need only state box. Okay, and there is a state box, and mm, through end point through the exit path of the state box, it will again come to initial state. So this is the ASM chart. Now question number 2. Question number 2 is draw the ASM chart and state diagram for the synchronous circuit having the following description. The circuit has control input C, clock and output XYZ. If C equal to 1 on every rising edge of the clock code, on output XYZ changes from 000 to 010, 100, 011, and after that 000. And next is if C equal to 0 then circuit holds the present state. तो सबसे पहले according to question you have to प्लॉट स्टेट डायग्राम। इसका स्टेट डायग्राम क्या होगा, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि जब सी का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, जो स्टेट है, जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। फॉर एवरी क्लॉक जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है, 00 से 010, फिर 100, फिर 011, फिर 00, चेंज हो रहा है जब सी 1 है। तो क्या हो जाएगा, जब भी जैसे माना कि इनिशियल स्टेट 000 है, जैसे ही इसको सी मिला इक्वल टू 1 मिला तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट है 010 हो जाएगा। फिर अगर सी 1 मिला तो नेक्स्ट स्टेट 100, फिर सी इक्वल टू 1 मिला तो नेक्स्ट स्टेट 110, एंड व्हेन एवर इट इज सी इक्वल टू 0 देन इट होल्ड्स सेम स्टेट। जैसे यहाँ सी इक्वल टू 0 है तो सेम स्टेट, सी इक्वल टू 0 है तो सेम स्टेट, सी इक्वल टू 0 है तो सेम स्टेट, सी इक्वल टू 0 है तो सेम स्टेट। सो दिस इज द स्टेट डायग्राम, दिस इज द स्टेट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज एएसएम चार्ट। तो इसका एएसएम चार्ट कैसे बनेगा, तो एएसएम चार्ट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, स्टेट बॉक्स की ज़रूरत होगी, स्टेट बॉक्स। और क्योंकि जो इसका आउटपुट है, आउटपुट इज फिक्स्ड, मीन्स दिस इज द मूरे आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ओके, दैट विल कम हियर। नाउ नेक्स्ट इज देर इज ए नीड ऑफ डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स से ये चेक किया जाएगा कि सी का वैल्यू क्या है। अगर सी का वैल्यू 0 है तो अगेन इट विल कम टू इनिशियल स्टेट, और अगर सी का वैल्यू 1 है तो इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेट। फिर क्या होगा, देर इज ए स्टेट बॉक्स, और स्टेट बॉक्स के इनसाइड में क्या हो जाएगा, आउटपुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। और इस टाइम में स्टेट क्या है, Q1 स्टेट है, और इसका जो बाइनरी वैल्यू है माना कि वो 01 है। ओके, नाउ अगेन देर इज ए नीड ऑफ डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स से फिर सी का वैल्यू चेक किया जाएगा। अगर सी का वैल्यू 0 है तो इट विल गो टू प्रीवियस स्टेट, और अगर सी का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेट। अगेन देर इज ए नीड ऑफ स्टेट बॉक्स, एंड हियर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। नाउ अगेन देर इज ए नीड ऑफ डिसीजन बॉक्स। फिर डिसीजन बॉक्स से ये चेक किया जाएगा कि सी का वैल्यू 0 है या 1 है। अगर सी का वैल्यू 0 है सो अगेन इट विल रिमेन एट सेम स्टेट, और अगर सी का वैल्यू 1 है, अगर सी का वैल्यू 1 है तो इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेट। नाउ अगेन हियर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0, और माना है कि ये Q3 स्टेट था और इसका जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 1 था। नाउ अगेन देर इज ए नीड ऑफ डिसीजन बॉक्स, और सी का वैल्यू चेक करेंगे हम। अगर सी का वैल्यू 0 है
तो ये सेम स्टेट पे रहेगा, और अगर सी का वैल्यू 1 है तो फिर अगेन इट विल कम टू इनिशियल स्टेट, और ये साइकिल चलता रहेगा. सो दिस इज द ASM चार्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Now next question is design a synchronous state machine to generate sequence of state T is shown in figure. Represent the machine by a state diagram and ASM chart and display the onset of state 7 with the help of LED. Okay. So सबसे पहले according to question you have to draw a state diagram. State diagram क्या है? स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे जो इसमें इसका स्टेट है, फर्स्ट से थर्ड पे जाता है, थर्ड से फाइव पे जाता है, फाइव से सेवन पे जाता है, और जैसे ही इसको सेवन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो इसका जो स्टेट डायग्राम बनेगा, जब इसका स्टेट वन पे है, तो जब स्टेट वन पे है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट वन होगा, सॉरी आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो 1/0. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट इज थ्री. तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो ये नेक्स्ट स्टेट थ्री पे जाएगा, और अगेन हियर आउटपुट विल बी जीरो, सो 3/0. फिर जब इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो क्या होगा, ये फाइव, नेक्स्ट स्टेट फाइव पे जाएगा, और यहाँ भी आउटपुट क्या होगा, जीरो ही रहेगा, तो 5/0. और फिर जब इसको फर्दर प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो ये फिर नेक्स्ट स्टेट सेवन पे जाएगा, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. सो दिस इज द स्टेट डायग्राम. नाउ नेक्स्ट इज ASM चार्ट. नेक्स्ट इज ASM चार्ट. तो इसका ASM चार्ट कैसे बनेगा, जब माना कि ये Q0 स्टेट है, ये Q1 स्टेट है, ये Q2 स्टेट है, और ये कौन सा स्टेट है, ये Q3 स्टेट है. तो जब Q0 स्टेट है, जब इनिशियल स्टेट Q0 है, तो क्या होगा, देयर इज ए स्टेट बॉक्स, और इसका जो आउटपुट है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये नीली आउटपुट है, सॉरी मुरे आउटपुट है, इसलिए इसका जो आउटपुट है y इक्वल टू जीरो स्टेट बॉक्स के इनसाइड में होगा. और माना कि जो Q0 स्टेट है, इसका जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वन के लिए 001 हो जाएगा. फिर फर्दर जब इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो ये नेक्स्ट स्टेट Q1 पे जाएगा, और Q1 के लिए, Q1 क्या है, थ्री है, और थ्री का जो बाइनरी वैल्यू है दैट इज़ 011. फिर यहाँ जो इसका आउटपुट है, आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका वो जीरो रहेगा. फिर जब इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो क्या होगा, Q1 स्टेट से Q2 स्टेट पे जाएगा, और Q2 स्टेट के लिए जो इसका बाइनरी वैल्यू है वो 101 होगा. और इसका जो आउटपुट है, कौन सा आउटपुट है, ये मूरे आउटपुट है, और मूरे आउटपुट के लिए क्या होगा, y इक्वल टू जीरो, दैट विल रिमेन इन स्टेट बॉक्स. फिर जब इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा, तो प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो ये फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, और यहाँ आके इसका जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि डिस्प्ले द ऑनसेट ऑफ स्टेट सेवन, मतलब जैसे ही इसको स्टेट सेवन मिलेगा तो क्या होगा, जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वन हो जाएगा. अब फर्दर जब प्रेजेंट स्टेट सेवन है और इसको प्रॉपर क्लॉक मिलेगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, ये Q0 पे जाएगा, तो फिर सेवन से कहाँ पे जाएगा, ये Q0 पे जाएगा, और ये जो साइकिल है ये साइकिल चलता रहेगा. सो दिस इज द ASM चार्ट. नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट दिस इज़ द एक्साइटेशन टेबल. तो इसमें जो प्रेजेंट स्टेट वैल्यू है, बिकॉज देयर आर फोर स्टेट, सो 001, 011, 101 एंड 111, देयर आर फोर स्टेट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. एंड नेक्स्ट स्टेट, तो जब प्रेजेंट स्टेट 001 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, 011. यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जब प्रेजेंट स्टेट इसका 001 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, 011. फिर जब प्रेजेंट स्टेट थ्री 011 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट फाइव. फिर जब प्रेजेंट स्टेट फाइव है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा. और
फिर जब प्रेजेंट स्टेट 7 है तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। एंड दिस इज़ द आउटपुट एंड दिस इज़ द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जब प्रेजेंट स्टेट माना कि क्यू सी का वैल्यू क्या है, 0 है, और नेक्स्ट स्टेट क्यू सी+1 का वैल्यू भी 0 है, तो इसका जो जे सी के सी क्या हो जाएगा, या तो वो 0 0 होगा या 0 1 होगा। तो हम के सी के लिए डोंट केयर यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम क्यू बी की बात करें तो क्यू बी क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्यू बी है वो 0 है, और क्यू बी+1 क्या है, वो भी 1 है वो। तो क्या हो जाएगा, जे बी के बी का वैल्यू क्या होगा, या तो वो 1 0 होगा या फिर 1 1 होगा। तो हम के बी के लिए क्या करेंगे, डोंट केयर का यूज करेंगे, और इस तरह से इसका जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स है वो हम बना लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज नाउ के मैप की रिक्वायरमेंट होगी, और के मैप की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी कि के मैप से क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन आएगा, और फिर जब बुलियन एक्सप्रेशन आएगा तो इससे हम क्या करेंगे, जो इसका सिक्वेंशियल सर्किट है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जेसी के लिए जो ये इसका एक्साइटेशन टेबल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, के मैप तैयार कर लेंगे, और के मैप से हम क्या करेंगे, जे सी के सी और जे बी के वी जे ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर जब जे सी के सी जे बी के वी जे ए एंड के ए का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जे सी का वैल्यू क्यू बी है, तो जे सी इज कनेक्टेड टू क्यू बी। फिर यहाँ से के सी का वैल्यू भी क्यू बी है, तो के सी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू क्यू बी। नेक्स्ट इज जे बी का वैल्यू 1 है, तो जे बी एंड के बी जे बी एंड के बी दोनों का वैल्यू 1 है, तो जे बी और के बी दोनों बोथ आर कनेक्टेड टू 1। फिर जे का वैल्यू 0 है, तो जे इज कनेक्टेड टू 0, के का वैल्यू भी 0 है, तो के इज कनेक्टेड टू 0, और सबका जो क्लॉक है, क्लॉक इज कनेक्टेड टूगेदर। अब इसका जो जो फ्लिप फ्लॉप ए है, इसका जो आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड टू एंड गेट। फिर जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है, इसका भी जो क्यू बी है दैट इज कनेक्टेड टू एंड गेट। फिर जो ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका भी जो क्यू सी है दैट इज कनेक्टेड टू एंड गेट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जैसे ही स्टेट 1 1 1 मिलेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब क्यू ए का वैल्यू 1 होगा, क्यू बी का वैल्यू भी 1 होगा, और क्यू सी का वैल्यू भी 1 होगा, तो जो ये नैंड गेट है इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या है, डायोड है। तो जब व्हेन n इज कनेक्टेड टू, this is n type of diode and this is the p type of diode. So when n is connected to lower potential and p is connected to higher potential, तो ये क्या होगा, ये एलईडी ग्लो करेगा। अब माना कि इसमें कोई वैल्यू 0 है, माना कि क्यू भी 0 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब n इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल तो क्या होगा, डायोड विल नॉट ग्लो। फिर माना कि क्यू ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो 1 1 रहेगा, तब भी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब n इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, तो क्या होगा, ये जो एलईडी है दैट विल नॉट ग्लो। इट विल ग्लो ओनली फॉर व्हेन क्यू ए इक्वल टू 1, क्यू बी इक्वल टू 1 और क्यू सी इक्वल टू 1। तो इस केस में जो इसका आउटपुट है क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये एलईडी ग्लो करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।